of revival, Lord, let them fall. Streams of salvation reaching to all. Pour out thy spirit, great is our need. Sweep o'er our beings now while we plead. Spirit divine, oh, while in thy presence humbly we bow. Set all our hearts ablaze with thy love. Teach us the secret of life from above. Utterly yielded, longing to know all the blissfulness love can bestow. Ready and willing, eager to give perfect obedience, bravely to live. Spirit divine, oh, quicken us now, while in thy presence humbly we bow. Set all our hearts ablaze with thy love. Teach us the secret of life from above. Spirit divine, oh, quicken us now, while in thy presence humbly we bow. Set all our hearts ablaze with thy love. Teach us the secret of life from above. Spirit divine, oh, quicken us now, while in thy presence humbly we bow. Set all our hearts ablaze with thy love. Teach us the secret of life from above. Spirit divine, oh, quicken us now, while in thy presence humbly we bow. Set all our hearts ablaze with thy love. Teach us the secret of life from above. Spirit divine, oh, quicken us now, while in thy presence humbly we bow. Set all our hearts ablaze with thy love. Teach us the secret of life from above. Teach us the secret of life from above. Hallelujah. 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 सब लोग बैठ जाइए. Nama. स्टैंडिंग माइक दे दो. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रभु ने हमें भी खुदावंद इन दिनों में संभाला, चलाया, हमारे सारा ज़रूरतों को पूरी करके दिया. प्रभु का भवन में रहकर सेवा करने के लिए खुदा हमें भी अब तक सहायता किया.
सब बातों के लिए प्रभु के सामने हम शुक्रगुजार हैं। आप लोग भी हमारे सेवा के लिए सेवकों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत से सेवक लोग बीमार होते हैं, बहुत से लोगों का हालत ख़राब हो जाते हैं। तो ये सेवा के विरुद्ध काम करने वाले शैतान की काम है, इसलिए सब लोग लगातार प्रार्थना में हमें भी ताम के चलाने के लिए आप लोगों से प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु सुबह के वक्त हमसे बर्ताव करने के लिए बातचीत करने सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। Oh God, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. हमारे बीच में कई लोग बीमार हैं, काफी Many are sick among us. और खुदावंद उनको भी चंगाई देना चाहिए। The Lord should heal them. कई लोग काफ़ी वीकनेस में हैं, काम कर नहीं पाते हैं, ड्यूटी में जा नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों को खुदावंद चंगाई देना चाहिए। Many are weak and they're not able to go to their duties and offices. The Lord should heal them. इसके लिए हम तारीफ करेंगे। Let's all praise God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आइए हम आज के ध्यान के लिए एक वचन पढ़ेंगे। For our meditation, let's read a verse. ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा देर लेंगे भी नहीं है, हम ज़्यादा बड़ा प्रचारक भी नहीं है। We don't have time. I will not take more time because we are not great preachers. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय का पहला दूसरा वचन पढ़ें। 2 Corinthians chapter 11 verse 1 and 2. दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, जल्दी जल्दी बाइबल निकाल के पढ़िए। 2 Corinthians chapter 11 verses 1 and 2. यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। ये कि जो है पुरुष के लिए तुम्हारी बात लगाई है, एक निर्मल शुद्ध कुंवारी के समान तुम्हें सौंप दूँ। For I have espoused you to one husband, that I may present you a chaste virgin to Christ. क्योंकि ये जो है संत पौलुस का एक निवेदन है, संत पौलुस का एक प्रार्थना थी। This is a prayer of Saint Paul. कि वो कहता है कि मैं डरता हूँ इस बात से, ताकि तुम्हारे सीधाई, तुम्हारे पवित्रता जो मसीह के ऊपर है, उससे कहीं भ्रष्ट ना हो जाएं। He says that, but I fear that lest by any means your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. हाँ, परमेश्वर जो है हमें इसलिए बुलाया, दुनिया से अलग किया है। The Lord has called us and separated from this world. किसके लिए? For what reason? उस एक ही पुरुष का हम दुल्हन बनने के लिए, That we might be espoused to one husband. वही हमारा मसीह यीशु है। That is our Lord Jesus Christ. उसी के पत्नी यानी दुल्हन बनने के लिए प्रभु हमें बुलाया। The Lord has called us that we might become His bride. इसी के लिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें एक ही पुरुष के लिए तुम्हारी बात लगाई है। And that is why He says, I have espoused you to one husband. तो प्रभु हमारे ये बुलाहट कितनी ऊंची बुलाहट है। The Lord has called us with a high calling. दुनिया में कितने बुरे लोग थे, There are so many bad people. इतने filthy- दुनिया भर के लोग हैं, There are the people of the population is great in this world. लेकिन इसके बीच में से परमेश्वर हमें बुलाया। But in the midst of all these, the Lord has called us. क्यों बुलाया? Why did the Lord call us? उसी का एक ही पुरुष का पत्नी बनने के लिए, That we might be espoused to one यानी husband. उसके दुल्हन बनने के लिए। So that we might be betrothed to Him. अभी बात यही है, And this is the thing. उस एक ही पुरुष के लिए बात लगाई, यानी हमारा मंगनी हो चुकी है। The Lord has espoused us to one husband. That is, He has made a betrothal. हमारे जीवन कैसा है? How is our life? हमारे मसीह के प्रति हमारे जीवन कैसा है? How is our Christian life? मसीह के प्रति हमारा प्रेम कैसा है? How is our life in this Christian हम world? यिर्मयाह की किताब में हम देख सकते हैं, When we read in the book of Jeremiah, तुम्हारे जो है विवाहित के समय, यानी यिर्मयाह की किताब दूसरे अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ें। let's read Jeremiah chapter 2 and verse 2. यिर्मयाह 2:2। The book of Jeremiah chapter 2 and verse 2. जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा ये कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम
मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि जोती बोई ना गई थी। बस हम अपने जीवन को पीछे की तरफ थोड़ा सा मोड़ के देखें। Let us turn ourselves to see how was our life. जब मसीह हमें बुलाया था, When Christ called us, जब उसने हमें प्रेम किया था, when He loved us, जब उसने हमें अभिषेक किया था, when He anointed us, उसके प्रेम हमारे दिल में जब डाला गया when था, He did put His love in our हमारे hearts, जिंदगी कैसे थे, how was our life? हम कैसे उसके पीछे होली थे। How did we went after Him? उस जवानी के स्नेह को मुझे याद आता है करके परमेश्वर कहता है। He says, I remember the kindness of the youth. उसी समय का भक्ति मुझे याद आता है। The love of thine espousal, I remember that. आज हमारा प्रेम कैसा है, How is our love today? आज कैसे हमारे भक्ति है, How is our godliness? उसी दिन का वो प्रेम वो भक्ति हमारे जीवन में है क्या? The godliness and the love that we have in that day, do we have today? जिस दिन हमें अभिषेक किया गया, When the Lord anointed us, जिस दिन से खुदावंद हमें दुनिया से अलग किया, the day when the Lord separated us from उसी this दिन का world, प्रेम कैसे थे? how was the love that is seen today? वो प्रेम आज है क्या? Do you have that love today? उस प्रेम भक्ति आज हमारे जीवन में पाए जाते हैं क्या? Do we have that love and the godliness in our lives? परमेश्वर जो कि कलीसिया को देख के ये कहता है, Seeing the church, this is the statement of the Lord. तुम्हारा पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। You have left your first love. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे पहला सा प्रेम तुमने छोड़ दिया। When we read in Revelation chapter 3, the Lord says you have left your first love. इसलिए कहते हैं कि तुम छेद कर और मन फिराओ और लौट के आओ। That's why the Lord says you repent and come to me and do the first works. पहला प्रेम से भरपूर हो जाना चाहिए। You should be filled with the first पहला love. सब काम करना चाहिए। You have to do first works. जब पहला प्रेम से जब भरपूर थे, When we were filled with the first उस love, वक्त पहला सा काम भी था। that time we were doing first works also. उस वक्त जो कि प्रभु के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते In थे। that days we were ready to do anything for the कब Lord. मीटिंग के दिन कब होगा करके इंतजार करते थे। We were waiting for the meetings. प्रार्थना के समय को हम अलग करके रखते थे। We have separated a time for prayer. प्रार्थना में कितना समय बिताते थे। We were spending a lot of time in prayer. प्रभु के लिए दुख उठाना बड़ी बात नहीं थी। Suffering for the Lord was not a big thing for us. कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए हम तैयार थे। We were ready to do anything for the Lord. लेकिन आज हमारी जिंदगी कैसा है? But how is our state today? संडे के एक दिन मीटिंग में आने के लिए सोचना पड़ता है। Coming to one Sunday meeting, you have to think about it. या जाऊं या नहीं जाऊं, Will I go for the meeting or not? क्योंकि बहुत से काम आ गया, Because there are so many work to बहुत से do. बातों में फंस गया। We are entangled in so many works. ये एकदम बिजी लाइफ हो गया। Our life has become so busy. परमेश्वर को समय देने के लिए नहीं है। We don't have time to give we don't have time for the Lord. परमेश्वर क्या कहता है? What does the Lord say? मेरे लोगों ने 2 बुराई किया है। My people have done 2 evil. यिर्मयाह 2 अध्याय में शायद 13. 2:13 The book of Jeremiah chapter 2 and verse 13. दूसरा अध्याय का 13वां वचन, यिर्मयाह 2 अध्याय का 13वां वचन। प्रभु कहता है, मेरे लोगों ने 2 बुराई किया है। The Lord says, for my people have committed 2 evils. पढ़िए। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझसे बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। बहुत से बल जो कि जल बहते हुए सोते को उसने छोड़ दिया। They have forsaken the fountain of living waters. अभी क्या है, सुराख वाली हौदी को ढूंढ लिया। They have hewed them out cisterns that is broken. जिसमें कुछ रुकते नहीं है। That can hold no water. दिन भर परिश्रम करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। They are laboring for the whole day, but they don't get anything. क्योंकि परमेश्वर को छोड़ दिया। Because they have forsaken the Lord. बहते जल को छोड़ दिया। They have forsaken the living waters. सारे आशीषों के एक बहाव हमारे जीवन में था। They were a fountain of blessings. क्योंकि जब शुरुआत में परमेश्वर के प्रेम से जब हम जीवन करते थे, परमेश्वर के आशीषों के बहाव अपने आप भी हमारे जीवन के अंदर आ जाते थे। In the beginning, when we were filled with the love of God, we had a fountain of blessings that is flowing in our lives. आज हमारे जीवन कैसा है? But how is our life today? कितने जो के कष्ट दुख भरे जीवन हम बिताते हैं। We are living with all sufferings and trials. परमेश्वर को छोड़ने के वजह से Because we have forsaken the Lord. उस हौदी के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। There is nothing in the cisterns. दिन भर हम कमाते हैं,
For the whole day we are laboring. दिन भर हम परिश्रम करते हैं, The whole day we are striving. महीने भर परिश्रम करते हैं, For the whole month we are साल laboring. भर परिश्रम करते For हैं, the whole year we are striving. कुछ भी दिखाई नहीं देते। We don't have anything. क्यों, क्या वजह है? What is the reason? बहते हुए उस जल के सोते को छोड़ दिया। We have left the fountain of living waters. इसलिए हम क्या करना चाहिए? So what we have to do? वापस लौट के आना We चाहिए, have to return back. प्रभु के पीछे आना चाहिए। We have to follow the Lord. जो है उस जो बीज बोती नहीं गई, जोती नहीं गई, ऐसे जंगल में परमेश्वर के पीछे कैसे लोग चले थे? When in a land that is not sown, how will the people go after the Lord? यहाँ अभी जो है सब कुछ होने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आराधना सेवा कर नहीं पाते हैं। When everything is full, we are not serving the Lord. We are खुदा- not following the Lord. खुदा उन सब कुछ हमें दिया है। The Lord has given everything for us. ये एक समय हमारी जिंदगी आप सभी जानते हैं, Once in our life, we know how was our life. लेकिन अब तो सब कुछ मिल गया। But we have received everything now. हमारे पास अभी क्या नहीं है? We have everything in full. हमारे पास क्या नहीं है अभी? What is the thing that is lacking in us now? परमेश्वर का प्रेम घट गया। We don't have the love of God. परमेश्वर के लिए जो समय देना दे नहीं पाते हैं। The time that we have to give to the Lord, we don't give Him. व्यवस्था विवरण में ऐसे एक वचन है 28 अध्याय उसका 40 शायद, सारे पदार्थों को 47 मतलब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 47वां वचन। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, नीचे भी इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। बस अभी क्या कैसे सेवा करेगा? अभी How will you serve now? ये एक समय जो एक समय कुछ भी नहीं था, Once we don't have anything, we didn't have anything. दौड़ दौड़ के हम लोग प्रभु के पास जाते थे। We came to the Lord running. कब समय मिलेगा प्रभु के हजूरी में जाना है? When will I get time to go to the presence of the Lord? लेकिन अभी सारी सुविधा हो गया, But now we have all facilities. सब पदार्थों से भरपूर हो गया। We are full with all things, abundance of all things. मैं अपने फेतों में सिस्टर से कभी कभी हम लोग बातें करते हैं, In our faith, sometimes we sisters speak like this. क्योंकि हमारे दिल्ली सेंटर में जब शुरुआत में जब मैं दिल्ली में आए थे, In the beginning of the Delhi ministry, when I came to this Delhi center, हम लोग किराए के मकान में थे, we were living in a rented house. खाने पीने का कुछ नहीं था, We didn't have anything to eat and कोई drink. गाड़ी नहीं था, We didn't have vehicles. कोई गैस नहीं था, We didn't have gas. कोई स्टोव भी नहीं था, We didn't have stove. अंगीठी चूल्हा जला के खाना पकाना पड़ता था। We have to prepare fire and then cook the food. और जो है हमारे पास जो है सेंटर फेतों में इन दिनों में शौचालय भी नहीं था। We didn't have even toilets in the center faith home. ऐसी हालत में हम लोग शुरुआत में दिल्ली में सेवा किया। In the beginning of my ministry, we served like this in this Delhi center. कायम जो कि दूध कभी देखने को नहीं मिलते थे, We did not even see milk in those days. चीनी डाल के कभी चाय नहीं पीते थे। We didn't get sugar in the tea. पंजाब से जो है थोड़ा गुड़ ला के रखते हैं, We get little jaggery from Punjab. और वहीं से जो है काला चाय बना के वो गुड़ टुकड़ा काट के चाय पीते थे। We used to drink a black coffee with a piece of jaggery. उन दिनों के सेवा इसी था, This was the ministry in those days. लेकिन अंदर क्या था? But what we had प्रभु के inside, प्रेम से हम भरपूर थे। we were filled with the love of God. प्रभु के प्रेम से हम जो कि कितनी दूर भी पैदल जाते थे, Filled with the love of God, we were walking to far places. समय समय पर प्रभु का हजूरी में हम रहते थे। In the correct time, we were in the presence of the Lord. प्रार्थना बंदगी में हम लवलीन रहते थे। We were able in prayer. उस दिन को देखेंगे तो आज दिल्ली के सेंटर का सेवा कितने बढ़ गया। The Delhi ministry have increased so much in these days. इसी तरह हर एक विश्वासियों का जीवन भी ऐसे ही थे। The life of believers also was like that. लेकिन अभी क्या कमी है हमारे जीवन में? But what is lacking in our प्रभु life? के प्रति प्रेम नहीं, We don't have the love of God. मेल मिलाप नहीं, We don't have आपस में मेल मिलाप नहीं, we don't have reconciliation. प्रभु को देने का समय नहीं। We don't give time for the Lord. मीटिंग में आएगा तो हम समय देखते हैं,
When we come to the meeting, we give time for the Lord. क्योंकि समय ज्यादा हो जाता है, Sometimes the time is running more. आराधना करने के लिए समय नहीं मिलता है। We don't have time to. ये सब कुछ क्यों? Why ये- this happens? ये क्यों ऐसे होता है? Why this happens? परमेश्वर का प्रेम घट गया है, The love of God has decreased in our lives. परमेश्वर का प्रेम हमारे हमसे दूर हो गया है। The love of God is going far away आप from लोग, us. कुछ लोग जो हैं, आप इस बात को मानेंगे नहीं, मेरे को मालूम है, मानेंगे नहीं कुछ लोग। Some people will not accept this. कई I लोग know. बोलेगा हमें, हमारे दिल हम जानते हैं। Some people will say, we know our heart. आपका दिल आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। You know our heart, and we know our heart. हमारा दिल, आपका दिल परमेश्वर भी जानता है। The Lord knows our heart and my heart इसलिए also. बोलते हैं कि परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होकर पहले से जैसे काम करो, कलीसिया से कहता है। That's why the Lord says to the church, as you did the first love, first works, you have to do now also. जैसे एक के पुरुष के लिए बात लगाई है। I have espoused you to one husband. अभी क्यों ये सब बातें होती है? Now, why this thing happened in us? एक के पुरुष के बदले में और भी कई बातें हमारे जीवन में आ गए हम। The Lord has espoused us to one husband, and because having one husband, we have gained so many husbands. हमारे जीवन के अंदर कई और बातें आ गया हमारे ऊपर राज्य करने के लिए। There are many more things have come in our life in order to rule over us. एक पारिवारिक जीवन में एक पति पत्नी है तो पति की बातें पत्नी मानना ही पड़ेगा। In a family, the husband should obey to the words of the wife. और क्योंकि The wife should obey to the words of the husband. क्योंकि एस्तर के किताब में लिखा है, हर एक घर में वो पुरुष जो है हुकूमत करता है, राज्य करता है। We read a verse in the book of Esther like this, the husband should rule over in the house. तो इसी तरह हमारे जीवन में, परिवार में जो है एक राज्य करने के लिए एक पुरुष को रखा है। That's like this, the husbands are kept in the families in order to rule. इसलिए हमारे जीवन में एक के पुरुष मसीह यीशु हमारे ऊपर राज्य करते हैं। The one husband, that is Jesus Christ, should rule over us. उसी के हम आज्ञा मानना चाहिए। We have to obey him. हम जो रोमियो की किताब में देखते हैं, When we read in the book of Romans, 7वां अध्याय, 7th chapter, कौन सा वचन देखना, जो है पति जब तक जीते रहेगा, पत्नी जो है उस व्यवस्था से अधीन है, व्यवस्था के अधीन में है। verse 3. तीसरा वचन पढ़ें। Romans 7 chapter का 3। 7 and verse 3. ये इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारणी न ठहरेगी। आगे पढ़ो। वैसे ही हे मेरे भाइयों, इससे वैसे है मेरे भाइयों, यही है असली बात, यही है। वैसे है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। जो मरे हुओं में जो जी उठा है उसी के हो जाने के लिए हम लोग भी व्यवस्था के लिए मर गए हैं। दोबारा यही वचन और एक बार पढ़ो। वैसे ही हे मेरे भाइयों, हाँ, तुम भी मसीह की देह के द्वारा मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ दूसरे को हो जाना है जो मरे हुओं में से जी उठा। कौन है मरे हुओं में से जी उठा हुआ? कौन है? Who is raised from the dead? कौन मरे हुओं में से जी उठा है? Who is raised from the dead? दुनिया में कौन मर गए और जी उठे? कौन है? Who has? बोलिए। इतना इतना डर लगता है क्या? प्रभु यीशु मसीह। जोर से पुकारा, मेरे यीशु मसीह जी उठा है। Uh, हालेलुया। उसी के हो जाने के लिए हमें बुलाया गया। In order to become his, we are being इसलिए called. व्यवस्था के लिए हम मर गए हैं। We are dead to the law. हम जो कि मसीह के हो जाने के लिए हम बुलाए हुए लोग हैं। That we should be married to Jesus Christ. We are being इसलिए हमारी called. जिंदगी में कई व्यवस्था हमारे ऊपर शासन करता है There are so many laws that is ruling over us. और कई दुनिया की बातें हमारे ऊपर व्यवस्था शासन करते हैं। There are so many things of the world that is ruling over us. कई लोगों के जीवन में अपने स्वयं एक पुरुष बन गया। The self has become an husband to some people. कई लोगों के जीवन में अपने बच्चे जो कि पुरुष बन गया। In some lives, their children has become an. कुछ लोगों के जीवन में मोबाइल उनका पुरुष बन गया। Some are having their mobiles as their husbands. वो जो बोलेगा वही करेगा। What they say, they will do it. प्रार्थना के समय जो है बोलेगा मोबाइल उठा के देखो।
In the time of prayer, it will say, take your mobile and see. वो पति बन गया है, It has become your वो husband. पुरुष बन गया है, It has become your वो husband. हुक्म देता है It is ruling over you. तुम अभी मीटिंग में नहीं जाना। You should not go to meeting now. कल 2 बच्चे इधर थे, टायरी मीटिंग के समय अपने घर में पहुंच गया The 2 children here, during the time of tiring meeting, they went to और their house. मीटिंग के बाद वापस आया। After meeting, they came to the church. कौन हुकूमत करता है उनके ऊपर, कौन राज्य करता है? Who is ruling over them? और एक जन राज्य करता है। And another person is ruling over हमारे them. जीवन में पाप हमारे ऊपर राज्य करने नहीं देना चाहिए, We should not allow sin to rule over us. स्वयं हमारे ऊपर राज्य करने नहीं देना चाहिए, Our self or ego should not rule over us. कोई संसार हमारे ऊपर राज्य करने नहीं देना चाहिए, This world should not rule over us. संसार की फैशन हमारे ऊपर राज्य करने नहीं देना चाहिए। The fashion of this world should not rule over us. कई लोग बोलेगा संसार छोड़ दिया, संसार की फैशन छोड़ दिया, लेकिन कई लोगों के जीवन के अंदर वो पति बन गया, पुरुष बन गया है। Some people say that I have left this world, I have left the fashion of this world, but this world, the fashion of this world has become their husband. मीटिंग में आते हैं, अच्छा लिपस्टिक लगा के आते हैं, They come to the meeting, they put lipstick on their lips and come. दिखते नहीं है लेकिन ऐसे उसी हिसाब से जो है लिपस्टिक लगा के आते हैं। The lipstick is not seen, but कहते हैं कि हम संसार के लिए मर गया, they say that we are dead to this world. फैशन के लिए मर गया, We are dead to the fashion of this हम world. इसे पाप के लिए मर गया, We are dead to the sin. लेकिन वो कई बार हमारे ऊपर शासन करता है। But many a time these are ruling over us. वो कहेगा, This will say, वो बोलेगा तुम इतनी जवान बच्चे हैं, ये संसार में कैसे चल रहे हैं, कान में कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं, मुंह पे कुछ नहीं, ये क्या जिंदगी है? it will say, you are a youth and you are living in this world. You don't wear any jewels. You don't make any. You don't put any fashion. He will speak to you like this. इसलिए थोड़ा बहुत ही लगा दो, That's why you put a little, ज्यादा नहीं, not so much. थोड़ा से लगाओ। A little. ये कौन कहता है? Who is saying like this? हमारे अंदर वास करने वाला पाप। The sin that is ruling within इसलिए us. संत पौलुस कहता है कि 7 अध्याय में उस वचन में लिखा है, ये एक व्यवस्था और एक बात जो है मेरे ऊपर शासन करता है। That's why Saint Paul writing in Romans, he say that another law is ruling over me. मैं भलाई करने के लिए चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाता हूँ, I want to do good, but I would not. जिस बुराई को करना नहीं चाहते वही मैं करता हूँ। But the evil which I would not, that I do. कौन करता है? Who does it? पुराना मनुष्य। The old man. सही इस तरह हमारे पुराने मनुष्य को हमने उतार के नहीं फेंका है। The reason is we have not put away the old man properly. इसलिए पुराने स्वभाव जो है हमारे जीवन में आ जाता है। That is why the old characters are having dominion over us. इन सब बात के लिए मरना चाहिए। For all these things we have to die. तब भी हम उस एक ही पुरुष का निर्मल जो है कुंवारी बन सकते हैं। Then we can be espoused to one husband as a chaste virgin. पुराने कितने नियमों में एक व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं। We read about a person in the Old Testament. शायद पहला शामुएल 25 अध्याय में। 1 Samuel chapter 25. पहला शामुएल 25 अध्याय। कर्मेल में एक नाबाल करके एक व्यक्ति था। There was a man called Nabal कर्मेल in Carmel. तीसरा वचन 25 का 3 पढ़िए। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वो कालेब वंशी था। वो नाबाल वो एक मूर्ख व्यक्ति था। He was a churlish man. उसकी पत्नी जो कि अबीगेल बहुत सुंदर थी। His wife was beautiful, of a beautiful countenance. और बहुत बुद्धिमान थी। She had a good understanding. लेकिन ये जो है जब तक ये नाबाल जिंदा रहा वो जो है अपने मर्जी कर नहीं पाई। Till this his husband was alive, she was not able to do his will. वो बुद्धिमान स्त्री थी। She was a woman of good understanding. हमारे जीवन में ये नाबाल का नाम का मतलब है मूर्खता, मूड। The name of the meaning of this name Nabal is churlish. और जो कि ये मूर्ख इंसान जब तक जिंदा था अबीगेल दावीद का पत्नी बन नहीं पाया। Till this Nabal was alive, this foolish man was alive, Abigail was not able to become the wife of David. वचन में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वाले के पास जो निकट मूर्खता की बातें।
That is why it is written in the word of God, the preaching of the cross is to them that perish foolishness. सारे वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है. We don't have time to read all the क्रूस verses. की कथा नाश होने वाले के निकट जो है मूर्खता है. The preaching of the cross is to them that perish foolishness. ये मूर्ख इंसान के पास दाऊद ने लोगों को भेजा. David sent some people to this foolish man, ये मूर्ख समझ नहीं पाया, but this foolish man did not क्योंकि understand. ये क्रूस की कथा इसके नाश होने वाले के पास मूर्खता यानी व्यर्थ बात थी. The preaching of the cross is to them that perish foolishness. It is nothing before them. तब तक जो कि अबीगैल दावीद को प्रसन्न नहीं कर पाए. Till then, this Abigail was not able to please David. आप घर में जाके पूरे अध्याय को पढ़ के देखिए. You go home and read the full chapter. दावीद ने उस पूरे परिवार को नाश करने के लिए मन में ठान लिया. David had prepared his heart to destroy the whole family. उस परिवार को नाश करने के लिए निकल चुका था. He had started to go in order to destroy the whole family. जो परमेश्वर का वचन सुनते नहीं, परमेश्वर के वचन को कबूल नहीं करते हैं, उनको नाश करने के लिए दंड की आज्ञा स्वर्ग से ही निकल चुकी है. Those who don't do according to the word of God or meditate according to the word of God, there is punishment from heaven above. लेकिन ये बुद्धिमान ये जो है ये अबीगैल उसका सामना करने के लिए कई भेंटें लेके चली गई. This Abigail, a woman of good countenance, she took so many gifts in order to meet David. वो दावीद के सामने जाके गिर पड़ी She went and fell before David. और जो कि भूमि पर गिर कर दंडवत किया. She fell to the ground and आप उस वचनों को फिर बाद में पढ़ के देखिए. you go and read that verses. उस दावीद के क्रोध को अबीगैल ने ठंडा किया. This Abigail, she took away the wrath of David. इसलिए जो कि वो परिवार बच गया. That's why her family was saved. लेकिन नाबाल के जीवन में क्या हुआ? But what happened to Nabal? वो मर गया. He died. 10 दिन तक उसी के सारी कहानी जब सुनाई गया, When all the things that happened was told to him, तब उसके जीवन में क्या हुआ? what happened to him? सुन्न हो गया, हृदय, He became as a stone. और जो है वो मर गया. He died. वो मरने के बाद After his death, 38. वो मरने के बाद दावीद को पता चला नाबाल के डेथ हो गया. अभी अबीगैल के पास कैला बीज रहे हैं. When after his death, it was told David that Nabal was dead, and that's why. And after that, he sent servants to Abigail. 40वां वचन 25 का 40 पढ़िए. जब दाऊद के 39 और 40 39 और नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है. तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उससे उसकी पत्नी होने की बातचीत करें. जब दाऊद के सेवक करमेल को अबीगैल के पास पहुंचे, तब उससे कहने लगे, दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने. बस नाबाल के मृत्यु होने के बाद दावीद जो है उसके पास सेवकों को भेजता है. And when David heard that Nabal was dead, he sent his servants to Abigail. तो मेरे पत्नी बनना है. You should become my wife. वो खुशी से उठ के चली गई. She arose and with joy came to her. उसमें लिखा है कि उसने अपने 5 सहेलियों के साथ दावीद के पास पहुंची. And it is written that with all her 5 damsels she came to David. वही दावीद पहले जो गए सुसमाचार यानी परमेश्वर का वचन उसके पास भेजा. In the beginning he sent his word. उसने नहीं माना है. He did not obey. अभी दोबारा जो है वो दूसरी बार परमेश्वर के सेवकों को भेजता है. And the second time he sent his servants. परमेश्वर हमें पहले छुटकारे का जो है सुसमाचार हमें सुनाता है. In the beginning the Lord gives us the gospel of deliverance. उसके बाद हमें सिद्धता की ओर हमें ले जाता है. And then he takes us to perfection. इसलिए नाबाल मरने तक अबीगैल जो कि दावीद के पत्नी बन नहीं पाया. Till the death of Nabal, Abigail was not able to become the wife आज of सुबह हम David. जांच के देखें हमारे जीवन में कौन सा नाबाल जिंदा है Let us all examine our lives and which Nabal is ruling over us, जिससे हम दावीद के पत्नी नहीं बन सकते, so that we may not become the wife of हमारे David, यीशु का पत्नी नहीं बन सके. so that we might
not become the bride of उससे Jesus. नाबाल मरना चाहिए, We have to, that Nabal should वो die. व्यवस्था मरना चाहिए, That law should die. पाप मरना चाहिए, That sin should die. फैशन मरना चाहिए, That fashion should die. संसार हमारे लिए मरना The चाहिए, world should die for us. तभी हम यीशु के प्रसन्न योग्य बन सकते हैं, Then we can please our Lord Jesus तभी हम Christ. उसकी पत्नी बन सकते हैं। Then we can become his wife. क्यों पत्नी करके लिखा है? Why it is written wife? आत्मिक जीवन में पहले पत्नी बनता है, बाद में दुल्हन बनते हैं। In our spiritual life, first we become wife, then we become the bride. दुनिया में ऐसा है, दुनिया की तरफ से देखेंगे तो When we see the world, दुनिया में पहले दुल्हन बनेगा, in the beginning we will be as bride. उसके बाद पत्नी बनता है। Then we become the bride, wife. आत्मिक जीवन में In our spiritual life, पहले पत्नी बनना है, first we have to become wife, उसके बाद दुल्हन बनना है। then bride. इसलिए लिखा है कि देखो मेमने के पत्नी तैयार है। That's why it is written the wife मेमने के पत्नी अपने आप को तैयार किया है। the wife had made herself ready. इसलिए अबीगैल जो है उठ के चली और दावीद का पत्नी बन गई। Abigail hasted and she became the wife of David. उसकी 5 सहेलियों के साथ वो गई करके वचन में पढ़ते हैं। We read in the word of God that 42. She went with 5 damsels. 42 वचन पढ़ें। तब अबीगेल फुर्ती से उठी और गधे पर चढ़ी और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली और वो दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। उतनी पत्नी हो गई, 5 सहेलियों के साथ गई है। She took 5 damsels with her. ये 5 किसको दिखाते हैं? What does this 5 5 speak? किस्म के सेवकों को प्रभु कलीसिया में दिया हुआ है। The Lord has given her 5 offices in the church. ये सब कुछ अभी बयान करने के लिए समय नहीं। There is no time to explain all these ये things. 5 सेवकों के द्वारा एक दुल्हन जो है, एक पत्नी जो है यीशु के लिए तैयार होता है। Through this 5 offices, a wife or a bride is prepared for the Lord Jesus इसमें Christ. प्रेरित है There are apostles, और नबी है, they are seers, prophets, और जो है चरवाहा है, shepherds, और उपदेश देने वाला है। those who they are teachers, 5 किस्म के सेवकों को दिया there है। are evangelists and 5 offices given. ये 5 किस्म के सेवक लोग कलीसिया में सेवा करते हुए ये एक कलीसिया को मसीह का दुल्हन बनाते हैं। The 5 offices in the church, they prepare the bride of Christ. इसलिए जो कि इनके 5 की सेवा अलग अलग होता है। There are different ministries to them. प्रेरितों की सेवा अलग है The ministry of the apostles are different. और जो कि भविष्यद्वक्ता की सेवा अलग है The ministry of the prophets is different. और जो कि उपदेश का सेवा अलग है। The ministry of the evangelists is different. चरवाहे की सेवा अलग है। The ministry of the pastors is different. ये कि चरवाहा कलीसिया में रहेगा तो क्या करेगा? When an evangelist, when a pastor is there in the church, what will happen? उसके हाथ में एक लाठी होगा, There will be a staff in his वो hand. हर समय जो है अपने भेड़ों को ध्यान रखेगा। He will always look after his flock. हे इधर कहाँ, क्यों उधर गया, क्यों इधर गया, Why did इधर you- उधर से इकट्ठा करते रहेगा। Why did you go there? Why did you go here? They will always gather the वो flocks. भेड़ के पीछे लगे He रहेगा, will be always after the flocks. उसको झुंड में लेके आएगा, He will gather them in a वो flock. झुंड से अलग होने नहीं देगा। He will not allow them to go और after the group. नबी जो भविष्यद्वक्ता की सेवा क्या है? What is the ministry of the prophets? वो परमेश्वर के कलीसिया में एक आंख के रूप में, आंख, He is as an eye to the church. वो जो है हर एक लोगों के जीवन के भेद की बातों को जानकर उनको समझाएगा। He knows all the secret things of the people and he make them understand. परमेश्वर उनके जीवन को जो लोगों के बारे में बता देगा। The Lord tells about the state of the people to him. अलग अलग सेवा के लिए हम अपने आप को सौंप देना We चाहिए, have to surrender ourselves to different तभी ministries. जाकर हम जो है दावीद के पत्नी बन सकते हैं। Then we can become the wife of David. ये पुराने नियम के ये एक उदाहरण है। This is an example in the Old Testament. हमारे पति मरना चाहिए, Our husband should die. पति के रूप में हमारे जीवन में क्या शासन करते करके आज जांच कर देखिए। Let us see as to what is ruling over us as an husband in our lives. पाप है क्या? पाप है क्या? Is it sin? संसार है क्या? Is it world? फैशन है क्या? Is it fashion? लापरवाही है क्या? लापरवाही। Is it negligence? और कुछ लोग नींद, For some people it is slumber. सोते ही रहेंगे। Some people keep on sleeping. इतना घंटा सोने में भी नींद पूरी नहीं होता है। For so many hours they will keep on sleeping, but still उसका पति वही है। their sleep is their husband. उठने से बोलेगा लेट जा और थोड़ी देर लेट जा। When we wake them, they will say, "Let me sleep for some more time." नीति वचन में दिखता है
और थोड़ी देर एक और झपकी, हाथ बांध के और एक झपकी. There is a verse in Proverbs that let me fold my hands for 1 minute. Let me sleep for some more time. उठाएंगे प्रार्थना के लिए, उठो. Get up for prayer. 4 बजे प्रेसिंग के लिए उठो. Get up for 4 o'clock praising. सीधा लेट के हाथ बांध के और एक झपकी लेने दो. They will fold their hands and they will say, yet a little sleep, a little slumber. कौन है ये? Who is this? यही है उसका पति, This is their husband. यही उनका पुरुष. This is their husband. इसकी कहने पर वो चलते ही रहता है. According to his word, they are. किसी ने ट्रांस में गया, नरक में यीशु मसीह ले जाके दिखाया. Somebody went in a trance and Jesus showed him. वहां पर एक आदमी सो रहा है. A person was sleeping in heaven. A person was sleeping in hell. वो स्लीप वहां पर जाके सोते हैं. In hell also he is sleeping. ये जो वो लड़की ने पूछा, यीशु यहाँ पर कैसे सोते हैं? The little girl asked Jesus, why this person is sleeping here? बोला है कि ये दुनिया में सोते ही रहे. Jesus said, even in the world he was sleeping. वो क्या करेगा? नरक में ले जाके अच्छा बिस्तर देगा. The Lord will take them to. Not Lord. Satan will take them to hell and give him a good bed. वहां पर क्या बेड होगा? What is the bed there? वो लिखा है, वचन में लिखा है, यशायाह की किताब 14 अध्याय में लिखा है. यशायाह की किताब 14 अध्याय, बिछौना बिछा कर रखेगा. 14 का 11 पढ़ो. तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया है. कीड़े तेरा बिछौना और कीड़ा तेरा बिछौना. Worm is spread under thee. और केंचुए तेरा ओढ़ना है. बस अच्छा बिस्तर बिछा के रखेगा और जो है अच्छा ओढ़ना भी देगा, आराम से सोते रहेंगे. Satan will give us good spread and good covering also. देखना, इसलिए नींद को कोई पति मत बनाइएगा. So you should not make slumber as your husband. सुस्ती लापरवाही को पति मत बनाइएगा. You should not make your negligence as your husband. फैशन को पति मत बनाइएगा. You should not make fashion as your husband. एक लेडी नरक में भी जाकर के परफ्यूम डालती है, क्रीम परफ्यूम डाल के खुश करके मारते रहता है. A lady was putting perfume in even in hell. उसमें से क्या निकलता है? What is coming out of that perfume? एसिड. Acid was coming. आग. Fire was coming out. एकदम आग लग जाता है. The fire will catch very soon. चिल्लाते हैं. They will scream. इसलिए दुनिया में जो खनेगा वही नरक में भी जाके करना पड़ेगा. Whatever we do in this world, we have to go, when we go to hell, we will do the इसलिए same सुबह thing. के वक्त हमारे ऊपर कौन शासन करते करके ध्यान करके देखे. That's why in this morning time, let us see as to what is ruling over us. हमारे यीशु हमारे अंदर है क्या? Our Jesus is with us or not? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है क्या? The Holy Spirit is within us or not? पवित्र आत्मा में अगुवाई करते हैं क्या? Do the Holy Spirit lead us? रास्ता भटकने के समय आत्मा अंदर से बोलते हैं क्या, यहाँ मत जाओ? When we go astray, does the Spirit of the Lord say you should not go this way? यिर्मयाह की किताब में लिखा है, पीछे से आवाज आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलते रहो. We read it in the word of God that we will hear a voice from behind saying, this is the way, walk therein. ये आवाज आप सुनते हैं क्या? Do you hear this voice? आप सुन पाते हैं क्या? Do you able to hear that voice? वचन में लिखा, मेरे लोग ऊंचा सुनने लगे हैं. My people do not hear properly. और ये यिर्मयाह की किताब 6वां अध्याय में लिखा है, ऊंचा सुनने मतलब बहिरा हो गया. मैं इनसे बहुत जोर से बोलना पड़ता है लेकिन सुनते नहीं. When we read in the book of Jeremiah that I speak to them and give warning that they may hear, but their ear is uncircumcised, that they not hear. ये लोग मेरे वचन को पीछे फेंक देते हैं. They have put the word of God behind me. हमारे हालत ऐसे हैं क्या? This is our state of war. इस सुबह हम मन फिराना चाहिए. Let us return and repent. हम लौट के आना चाहिए. Let us return to the Lord. यदि हमारे पास समय नहीं तो If you don't have time, परमेश्वर क्या करेगा? what will the Lord do? होशे की किताब में लिखा है कि मैं इसको मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा. When we read in the book of Hosea that I will allure him and take him to the wilderness. जंगल में ले जाके मैं शांति की बातें कहूंगा. He will take us to the wilderness and speak comfortably unto अभी us. परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए समय नहीं. We don't have time to hear the voice of the Lord. परमेश्वर की आवाज पहचान नहीं पाते हैं. We are not able to discern the voice of the वो Lord. बुलाते मेरे प्रिय, मेरे कबूतरी करके बुलाता है. He is calling us my
beloved, my dove. लेकिन वो सुनने के लिए, समझने के लिए मुश्किल है। But we are not able to understand it क्यों? दुनिया भर के भीड़ भाड़ में आवाज समझ नहीं आता है। because of the rushing of this world. We are not able to understand the हर voice of the समय Lord. मोबाइल कान में कहाँ से सुनाई देगा? Anytime we are having the mobile in our ears, and how will hear the voice of the Lord? दावीद कहता है कि मैं यहोवा के अपने सामने रखा है। The Saint David, King David says, I have kept the Lord always before me. आज कितने लोगों के सामने मोबाइल, हर समय मोबाइल दिखता है। Many a times we have the mobile before us, कहाँ प्रभु की आवाज सुनने के लिए समय? but we don't have the time to hear the voice of the Lord. आप लोग अंगीकार करें ना करें, यही हाल इन दिनों में बहुत से लोगों के जीवन के अंदर। If you accept it or if you don't accept it, this is the state today. परमेश्वर जो है इन बातों से बहुत दुखी है। The Lord is grieved when he sees all these things. वो बोलते हैं कि मैं किससे बोलूं? The Lord asks, to whom will I speak all मैं this? किससे बात करूं? To whom will I speak? ये लोग सुनना नहीं चाहते But they हैं। don't want to hear the voice of the ये Lord. मेरे वचन को पीछे फेंक देते They हैं। have put my words behind them. आज कलीसिया का यही हाल है। This is the state of the church today. इसलिए परमेश्वर के लोग हम लौट के आना चाहिए। So dear children of God, we have to return. एक के परिश्य के लिए मेरा बात लगाई है I have espoused you to one husband, और जो कि हम उसी के पीछे चलें। and we have to follow him. वो आज दुखी होता है। And today he is grieved because of वो us. कहते हैं तेरी जवानी के स्नेह को मुझे याद आता है। He says that I remember the kindness of thy youth. जब तुम्हारे मंगनी होते हैं उस वक्त का प्रेम, उस भक्ति मुझे याद आता है। The day when I betrothed to you, when I espoused you, I remember the love that you went after me. हम इस बात को समझ सकते हैं क्या? Do you understand this thing? परमेश्वर का नहीं तो क्या करेगा? परमेश्वर जिसको प्रेम करेगा उसको ताड़ना देगा। The Lord chastens those who loves. जो जिसको प्रेम करेगा उसको ताड़ना भी देगा। The Lord chastens them. तो जो है परमेश्वर क्या करेगा? जो होशे की किताब में लिखा है, When God loves us, He will chasten us also. परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी मार्ग को बंद करूंगा। The Lord says, I will put an hedge, or I will. खांडे का झाड़ियों का जो है बाड़ा बांधकर इसकी मार्ग को मैं बंद करूंगा। I will put a hedge of thorns, and I will. होशे की किताब शायद दूसरे अध्याय में है ना, खांडे वाले बाड़े को बांधकर मैं उसकी मार्गों को बंद करूंगा, यारों को पीछे दौड़ने से रोक देगा। 6 and 7. 6 और 7। इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा, कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा, ऐसे बाड़ा खड़ा करूंगा कि वो राह ना पा सकेगी। हाँ पढ़ो। वो अपने यारों के पीछे यारों के पीछे बहुत यारें हमारे जीवन में आ गया, इसलिए जो कि प्रभु यीशु के प्रेम को समझकर उसके पीछे नहीं जा पाते हैं। Many lovers have we are going after many lovers, and that's why we have forgotten the love of the Lord Jesus. इसलिए वो प्रेम कम होते जा रहे हैं। That's why the lovers keep decreasing. वो कहते उसी अध्याय में कहता है, वो कहती है, हाँ इससे अच्छा था मेरा पहला पति के साथ रहना, कितना अच्छा था। In the same verse, it is written that I will go and return to my first husband, for then was it better with me than now. इसलिए मैं अपने पहला पति के पास लौटूंगा। And that's why I will go and return to my first husband. 7 पढ़िए। वो अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी, और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वो कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी। पहले पति के पास लौट जाऊंगी। कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पास से फिर लौट आएगी। I will go and return to my first husband. Who is this first husband? This is the Lord Jesus Christ. अभी थोड़ा सा मार्ग खुला है। Now a way is open for us. जाते रहो। Keep on going. ये एक दिन आएगा। One day will come. खांटों से घेरेगा। It will be hedge up. The ways will be full of वो thorns. बाड़ा बांधेगा। He will put up the hedge. कहीं जा नहीं पाएगा। We will not able to go. उस वक्त समझेगा, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने की वजह से ये बात हो गई। And that day we will understand that because I have forsaken the Lord, all this is इसलिए happening. मैं अपने पहला पति के पास में लौट जाऊंगी। I will go and return to my first husband. हम ये समय है लौट कर आना है। This is a time to return. प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के डोरी से बांधे जाना है। We have to be bound with the cords of love of Jesus Christ. यिर्मयाह 3 अध्याय में लिखा है कि मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। When we read in Jeremiah chapter 3, he says, I am your Lord. മലയാളം में लिखा है, ഞാനല്ലോ നിന്റെ ഭർത്താവ് है ऐसे वचन।
यिर्मयाह 3:14 है क्या? 14th verse, 3:14. हे भटकने वालों लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम्हारे स्वामी। मलयालम में पढ़िए एक बार। ഞാനല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ്. For I am married unto अभी you. सबका भर्ताव कौन है? सबका भर्ताव कौन है? पति कौन है अभी? Who is our husband now? अभी अभी ब्रदर्स बोलेगा हम लोग सब पति बन गया। नहीं, आपके ऊपर एक पति है। All the brothers will say we are husbands, but there is a husband over you. हम सब एक के पुरुष के लिए बात लगाई गई है। We are espoused to one husband. अभी हमारी शादी होने वाला है। Our marriage is going to हम take place. कितने पवित्र जीवन बिताना चाहिए। How many of us are living an हम holy अपने life? को अशुद्ध नहीं करना We चाहिए। should not make ourselves filthy. मसीह के प्रेम के प्रति हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। To the love of God, we should be faithful. इसलिए विश्वासघाती बच्चे करके लड़के वाले करके बुलाता है। That is why He is calling our backsliding children. पति को छोड़ दिया इसलिए कहता है विश्वासघाती लड़के वालों। Because they have forsaken the Lord, the Lord is calling them backsliding children. तुम लौट के आओ। Return. इस सुबह के वक्त हम अपने जीवन को जांच कर देखेंगे। Even this morning, let us all examine our lives. हम अभी किसके पीछे हैं? Who हमारे ऊपर कौन सा पति राज्य करता है? is ruling over us? Which husband is ruling over us? प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर राज्य करना चाहिए। The Lord Jesus Christ should rule over us. पवित्र आत्मा में शासन करना चाहिए। The Holy Spirit should rule over us. वचन में लिखा है कि मेमने के शादी का दिन आ पहुंचा है। We read in the Word of God, the marriage of the Lamb is प्रकाशित वाक्य 19 का 7वां वचन। Revelation chapter 19 and verse प्रकाशित 7. वाक्य 19 का 7। Revelation chapter 19 and verse 7. आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये दुल्हन ने करके ये नया बाइबल में लिखा, पुराने बाइबल में पत्नी अपने आप को तैयार की। इंग्लिश में Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. देखा वाइफ लिखा है। ये हिंदी अभी जब कोई नया करके सरल भाषा में कर देते हैं। They have made this Hindi translation very easy. पत्नी अपने आप को तैयार किया है। The wife had made herself ready. अभी हम अपने आप को तैयार करने के समय है। This is the time that we have to make ourselves ready. परमेश्वर के वचन का ज्योति में हम चलें। According to the light of God, light of the Word of God, we हम have to अपने walk. जीवन को शुद्ध करें। Let us all cleanse our lives. नए नियम में संत पौलुस कहता है। In the New Testament, Saint Paul says. पुराने नियम में हमने देखा नाबाल और अबीगैल की कहानी देखा। In the Old Testament, we did read about the story of Nabal and Abigail. नए नियम में संत पौलुस की बातें हम देखें। In the New Testament, we will see about the life of Saint संत Paul. पौलुस कहता है, Saint Paul says, मैं नहीं मसीह मुझ में जीवित है। not I, but Christ liveth in me. गलातियों 2 का 20। Galatians chapter 2 and verse 20. जल्दी पढ़िए। गलातियों की किताब 2 अध्याय का 20वां वचन नहीं है क्या? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया मैं गया मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित मसीह है। मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अभी जिसने मुझे प्रेम किया, मेरे लिए जीवन दिया, उसी यीशु का मैं पत्नी बनना है। The Lord who loved me and gave himself for me, I have to become his bride. इसी के लिए क्या करता हूँ? For that, what should I do? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाता हूँ। For this, I am crucified with Christ. उसके 6 गलातियों 6 अध्याय में भी लिखा है, दुनिया मेरे लिए, मैं दुनिया के लिए क्रूस पर चढ़ गया। In the 6th chapter, we read that the cross of the world, Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. 6 का 14. 14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, अभी संसार मेरे लिए क्रूस पर, मैं संसार के लिए, संसार मेरे लिए। जब संसार देखेगा मैं क्रूस पर हूँ,
when the world is crucified unto me and I unto the world. When the world see me, I am on the cross. पाप मुझे देखेगा मैं क्रूस पर हूँ. Sin should see me on the cross. फैशन मुझे देखेगा मैं क्रूस पर हूँ. When fashion is seeing me, I should be on the cross. तो हम क्रूस पर चढ़ाए हुए हम कुछ कर सकते हैं क्या? When we are crucified on the cross, will we be able to do anything? मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है. Not I, Christ liveth in me. हमारे मसीह हमारे अंदर जीवित रहना चाहिए. Our Christ should live in us. वही हमारे पति हैं. He is our husband. वही हमारे पुरुष हैं. Oh, he is our husband. वो We are हमें married unto सही him. मार्ग में चलाएगा. He will take us on the right way. हमारे अंदर कोई बुराई नहीं निकलेगा. No evil thing will proceed क्योंकि from us. यीशु हमारे अंदर जीवित है. Because Christ is living in us. ऐसे रहने वालों के घरों में कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं. When we live like this, there will be no problems, no fightings and quarrelings in our कोई houses. फैशन नहीं आएगा. No fashion will come कोई within us. संसार अंदर प्रवेश नहीं करेगा. The world will not enter into us. क्योंकि मसीह जीवित है. Because Christ is living. आइए हम लोग घुटने में आ जाएं. Let's all be on our knees. आप लोग ध्यान करके देखें. Let's all meditate. मेरे जीवन में कौन सा पति शासन करता है? Which husband is ruling over me? संसार है क्या? This world, what? आप है क्या? The self or what? मेरा स्वयं है क्या? The ego or what? कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपना मर्जी कर सकता हूँ. Some people are thinking that I can do my own will and संत wish. पौलुस कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ. Saint Paul says, I cannot do my own will क्योंकि and wish. मसीह मुझ में जीवित है. Because Christ is living in me. मैं अपने मर्जी से नहीं जा सकता. I cannot live according to my own मैं will अपनी and मर्जी wish. से कुछ बोल नहीं सकता I है. cannot speak anything according to my own will. हमारे यीशु कहा मैं अपने आप से मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. Our Lord Jesus Christ said, I cannot do anything of मैं अपने myself. आप कुछ नहीं कर सकता हूँ. I cannot do anything of पिता myself. मुझे जो दिखाता है वही मैं करता हूँ. What will the Father say? I will do the same पिता thing. मुझसे जो कहने के लिए कहता है वही मैं कहता हूँ. What the Father wants to say, I will speak only the same thing. हमारी जिंदगी कैसा है? How is our life? हम फिर से इस पति को, इस पुरुष को हमारे जीवन में आने दें. Once again, let us all take this husband in our lives. वो हमारे जीवन में राज्य करने दें. He should rule over us. वो हमें सही मार्ग में ले जाएगा. Then he will take us on the right path. वो कहता है मेरा जुआ अपने आप उठा लो. He says, take my yoke upon you. वो जो कि सरल है, हल्का है. It is very easy and light. मैं नम्र और मन में दीन हूँ. I am meek and lowly in heart. मेरा जुआ उठा लो. Take my yoke upon you. मुझसे सीखो. Learn of me. यदि मसीह के साथ हम जुड़ गया तो हमें सही मार्ग में ले जाएगा. When we are united with the Lord will take us on the right path. हम यीशु के समान बनने के लिए बुलाए हुए लोग We हैं. are called to become like Jesus. इसलिए प्रभु के साथ हम जो कि नया वाचा को बांधे. Let us all rededicate our life and make a covenant with the Lord. यिर्मयाह में लिखा है कि हाथ उठा के परमेश्वर के साथ वाचा बांधा था. When we read in the book of Jeremiah that we have lifted our hands and made a perpetual covenant with the वाचा Lord. को हमने तोड़ दिया है. We have broke the covenant. मसीह के प्रेम से दूर हो गया है. We have become gone far from the love of दुनिया के Jesus. प्रेम से चले गया. We have gone to the love of the world. हम लौट के आ Let जाएं. us all return. हमारे यीशु बहुत जल्दी आने वाला Our है. Jesus is going to come very soon. जिसने हमको प्रेम किया, The Lord who loved us. जिसने हमको हमारे लिए जान दिया, The Lord who gave himself for us. जो हमारे लिए स्वर्ग राज्य तैयार कर रहा The है, Lord who is preparing a heavenly place for वो us. जल्दी आने वाला He है. is going to come very उसी soon. के लिए हम तैयार हो जाना We have to चाहिए. prepare for that. हम जैसे सुबह गीत में गाया, Like we sang in घोर जंगल के सफर में बहुत से कष्ट परेशानी आती है. there are so many sufferings and problems in this wilderness journey. वो हल्का सा क्लेश है, This is very light affliction. पल भर का क्लेश It है. is for a moment. जब वो आएगा When he comes, हमारे आंसू पहुंचेगा, he will wipe all our हमारे tears. क्लेश खत्म हो जाएगा. All our trials will be over. हमेशा हमेशा हम अपने पति के साथ रहेंगे. We will be with the Lord eternally and eternally with the हमेशा हम husband. दुल्हन बनकर राज्य करेंगे. We will be with him as a bride and we will reign with him उस eternally. अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेंगे. We will enter into that eternal kingdom. वही स्थान से हम लोग गाएंगे, सब लोग मिलके. Let us all join together and sing the घोर same. जंगल के सफर में परेशानियों से हम गुजरे, यीशु को प्यार हम करें और प्रश्न कभी ना. सब जोर से गल के सफर में परेशानियों से हम गुजरे. सिद्ध वो बनाएगा, स्वर्ग ले जाएगा. सिद्ध वो बनाएगा, महिमा में जब आएगा
आस पहुंचेगा हो हमारे दुख मिटा। हालेलुया। एक बात और जो कि सोच समझ कर उसको गाते हैं हम, जो कि मीटिंग खत्म करेंगे, उसमें लिखा है परीक्षाओं से गुजरने के टाइम कोई प्रश्न पूछने का हक हमारे पास नहीं है, कोई सवाल करने का हक हमारे पास नहीं है। क्या करना चाहिए? प्रभु को प्रेम करना है, प्रभु से कहना मैं तुझे प्रेम करता हूं यीशु, तेरा प्रेम मेरे लिए काफी है, मैं तुझे प्रेम करता हूं। घोर जंगल का सफर हो, परीक्षाएं हो, आग हो, पानी में हो, मैं प्रभु के प्रेम से भरपूर होकर पीछे चलेंगे। तो सुबह उस वक्त और एक बार हमें पूरे कमिटमेंट के साथ, घोर जंगल के सफर में परीक्षाओं से हम गुजरे, यीशु को प्यार हम करें और प्रश्न कभी ना पूछे। घोर जंगल के सफर में परीक्षाओं से हम गुजरे, ईश्वर को प्यार हम करें और प्रश्न कभी ना पूछे। सिद्ध वो बनाएगा, स्वर्ग ले जाएगा, सिद्ध वो बनाएगा, स्वर्ग ले जाएगा, महिमा में जब आएगा। ओ हमारे दुख मिटा के आस सब पहुंचेगा, ओ हमारे दुख मिटा के आस सब पहुंचेगा। उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु से, उड़ के मिलेंगे प्यारे यीशु से, महिमा में जब आएगा। हो हमारे दुख मिटा के आंसू से पहुंचेगा, 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 हो हमारे दुख मिटा के शबकलमनम सिदा नमकलमनम सिदि बिगड़ बगड़ बिखतिना शमनमनगड़ बिगड़ बखल बगड़ बिगड़ गदुरम सिना इमे खतिना मसिना मनगड़ बगड़ मसिना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord. बखलमनम सिदम तिना। हालेलुया। सब लोग ऐसे इरादा करें, मैं प्रभु को ही प्रेम करेंगे। Let's all make a dedication. I will love the Lord. प्रभु को प्रेम करके उसके पीछे जाएंगे। I will love the Lord and follow after और him. कोई पुरुष हमारे पर हुकूमत नहीं करना चाहिए। No husband should rule over us. संसार नहीं चाहिए, This I don't want this world. फैशन नहीं चाहिए, I don't want this fashion. पुराना मनुष्य का स्वभाव नहीं चाहिए, I don't want the character of the old man. पाप मेरे ऊपर शासन नहीं करना चाहिए। Sin should not rule over me. मैं यीशु के समान बनना है, I want to become like यीशु मुझ Jesus. में वास करना है, Christ should live in me. मसीह मुझ में जीवित है। Christ is living in me. सब लोग सौंप देंगे प्रभु के हाथों Let में। us all surrender ourselves in the hands of the Lord. हालेलुया। रबखलमनम सिदबिकड बखतिनामनम सिदबिकड बगडम सिदा। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमारे आराधना को बोझ उठाए, तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। इस हफ्ते के सारे कार्यक्रम ऐसे ही रहेगा। बुधवार को ये जो है मंदिर प्रार्थना होगा, सुबह उपवास प्रार्थना, सब चलते रहेगा। उपवास प्रार्थना किसी को भी नहीं चाहिए, केवल तो दो तीन लेडीज़ का, और लोग कहते हैं कि ये लेडीज़ प्रेयर है ना। उपवास प्रार्थना को लोग नाम रख दिया लेडीज़ प्रेयर, इसलिए कोई आते नहीं, सारे प्रार्थना चलते रहेगा। जिसको आना है आइएगा, जिसका पति हुक्म देगा जाओ बोलने से जाओ, नहीं तो घर में बैठने के लिए बोल दो घर में बैठो, है ना। सारे मीटिंग चलते रहेगा, सब खुदावंद बोझ उठाना चाहिए। तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। संडे स्कूल सेवा आशीष करना चाहिए, तारीफ करें। चेन्नई यूथ मीटिंग को आशीष किया, तारीफ करेंगे। लौट के आने यात्रा में साथ रहना चाहिए, तारीफ करें।
इस हफ्ते भर प्रभु का मर्जी के बीच में हम पाए जाना चाहिए। तारीफ करें। हमारा आत्मा प्राण शरीर प्रभु के हाथों में सौंप देकर तारीफ करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए तारीफ करें। जल्द आने वाले यीशु के लिए तारीफ करें। उससे मिलने के लिए हमें योग्य बनाने के लिए तारीफ करें। आसमानी बाम शुक्र और तारीफ करते हैं खुदावंद। प्रभु हमारे इस इबादत को तूने बोझ उठाया, चलाया, आशीष किया खुदावंद। आए हुए लोगों को खुदावंद तूने आशीष किया, हर एक लोगों के साथ बर्ताव किया खुदावंद। सुने वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु सहायता कर खुदावंद। प्रभु मसीह यीशु के ऊपर जो निर्मलता, जो शुद्धता, जो पवित्रता, जो सीधाई है, उससे भ्रष्ट करने के लिए शैतान इन दिनों में कोशिश करते हैं। शैतान ऊपर हमारे ऊपर शासन नहीं करना चाहिए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे ऊपर खुदावंद हुक्म करने के लिए, हमें अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जानते तेरा आना बहुत निकट है, बहुत जल्दी अपने दुल्हन को लेने के लिए आ रहे हैं खुदावंद। प्रभु हम उससे पवित्र निर्मल शुद्ध खुदावंद कुंवारी होकर दिखाई देने के लिए प्रभु सहायता कर। आए हुए सारे लोगों को तेरे हाथ में देते, जितने लोग नहीं आ सके अपने अपने जगह में आशीष दे, बीमारों को चंगाई दे खुदावंद। प्रभु इस हफ्ते पर वचन के आधार पर जीवन व्यतीत करने के लिए मदद कर। हमारे यीशु कभी भी प्रकट होगा, उससे मिलने के लिए हमें योग्य बना दे। आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में अर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।